So, Assalamu alaikum and hello to all of you. So today's topic of lecture. So today's lecture is pediatric forensic medicine, which is part one of the two lecture series. And in today's lecture, we are going to be studying the different terminologies that are being used, being related to fetal child destruction. Status of the infant commonly in a clinical and medical legal scenario. What's the status of the infant? How you estimate the fetal age? Discuss live born baby. I mean a baby who is born alive. How will you differentiate between a baby who is born dead or stillborn? And precipitate labor and unconscious delivery, how you examine it and how you differentiate the features, and the criminal cause of the death, which is the act of commission and the act of commission. So when we're talking about infanticide, infanticide is basically defined as the unlawful, means unlawful. In Pakistan, it is also an illegal act. So it is the unlawful destruction of a child under the age of 1 year, means from the time he is born alive till the time he turns 1 year old. And between this time period, if the child is being dead, irrespective of the circumstances, in a manner, it is referred to as infanticide. Now, what are the laws of the infanticide? There are two laws in the Shariat law that we already discussed, which is concerned with the infanticide, that is Isqat-e Hamal and Isqat-e Janin. Isqat-e Hamal means a person, when a person causes a woman to miscarry, means a person whom we are calling a person means a doctor or a dai or midwife, which usually called, who miscarry, especially in a situation where such a woman is pregnant with a child and organs of the child have not been formed, means the vital organs have not been formed, the child main organs की formation नहीं हुई है, तो उसको हम लेबल करते हैं इसकाते हमल. और पर्पस क्या होता है? पर्पस इज नॉट इन अ गुड फेथ या इन्फेंट की जान बचाने के लिए या फीटस की जान बचाने के लिए नहीं होता, या वुमेन की लाइफ सेव करने के लिए नहीं होता, इसमें गुड फेथ नहीं होगा. Isqat-e Janin जो होता है, basically when a person causes a woman to miscarry, especially in a situation where such woman is pregnant with child. अब इसमें ये होता है चाइल्ड के ऑर्गन्स और लिम्ब जो होते हैं वो फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि वायबिलिटी, जो चाइल्ड की वायबिलिटी होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट सर्वाइवल एक इन्फेंट का हो सकता है, उसमें अगर उसका मिसकैरी किया जाए तो उसको हम इसकाते जनी कहते हैं. अब अगेन इसमें भी यही होता है कि गुड फेथ नहीं होता है, लाइफ सेविंग के लिए नहीं होता है, बेबी के लिए भी और मदर के लिए. तो ये दो लॉज हैं पाकिस्तान में जो कि हमारे उसमें डिस्क्राइब किए गए हैं शरीयत लॉ में. फ्यू टर्म्स है, जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें फ्यू टर्म्स होती है जो यूज की जाती है कॉमनली इन क्लिनिकल सिनेरियो भी यूज की जाती है, जिसमें फीटिसाइड होता है. इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ द फीटस एट एनी टाइम प्रायर टू बर्थ, यानी कि अगर उसने एक he has not even respired a single breath, तो before that अगर उसकी डेथ की जाती है तो उसको हम feticide कहते हैं. अब filicide is the killing of a child by its parent, means with full intent जो है वो parents जो है वो murder करते हैं. Neonaticide जो होता है is the deliberate killing of a child within 4 weeks of the birth, यानी कि after birth जो 4 weeks का time period होता है. अच्छा, न्यूनेट कहते हैं किसको है? न्यूनेट का मतलब होता है फर्स्ट 28 डेज ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, जो बर्थ के बाद जो फर्स्ट 28 डेज होते हैं उनको हम न्यूनेट्स कहते हैं. इसी तरह टर्म यूज होता है फीटस, तो फीटस होता है फ्रॉम द एंड ऑफ 8th वीक आफ्टर कंसेप्शन, जो 8th वीक होता है, एंड ऑफ 8th वीक टिल डिलीवरी जो है हम फीटस का लफ्ज यूज करते हैं. इस तरह के टर्म्स हैं दैट मे बी यूज इन केस ऑफ इन्फेंटिसाइड, कॉमनली यूज होता है.
अच्छा, वाई आर वी स्टडिंग इन्फेंटिसाइड, व्हाट इज द नीड टू स्टडी इट, इसमें ऐसी क्या चीज है? बेसिकली केस सिनेरियो इस तरह का आता है जो कॉमनली क्लिनिकल सेटअप में भी आता है, इमरजेंसी में भी या मेडिकल लीगल सेटअप में आता है कि अगर न्यू बॉर्न इन्फेंट बेबी है, प्रोन पोजीशन में ग्राउंड में मिला है इन फ्रंट ऑफ अ सर्विस रूम, अब ये जो बेबी है ये ऑन एग्जामिनेशन जो है वो इज अ फुल टर्म मेल, हाउ विल यू नो इट्स अ फुल टर्म? बिकॉज जो कि वहां मौजूद है उसकी क्या क्राइटेरिया था जिस पर उसको लेबल किया गया फुल टर्म है। उसके अलावा ये था कि वो उस बेबी की जो नेक पे था वो येलो कलर का फैब्रिक जो था वो टाई हुआ था, एंड दैट बेबी वाज रैप्ड इन अ वाइट टॉवल जिसके ऊपर ब्लड स्पॉट्स थे। अभी क्या रीजन थी, ये टाई क्यों हुआ था नेक पे, उसकी जो डेथ थी वो क्या रीजन थी, ये क्वेश्चन मार्क इस पर आ जाता है। तो बेसिकली ऐसे केसेस में जब आपके पास कैजुअलिटी में केस आता है तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही होता है कि रीजन क्या थी। एक तो एज आपने मालूम करनी होती है, दूसरा आपने मालूम करना होता है कॉज क्या होता है, ये कॉज इसकी था। दो चीजें इन केस ऑफ इन्फेंटिसाइड बहुत नेसेसरी, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या था एट द टाइम के वो अलाइव था या स्टिल बॉर्न था या डेड बॉर्न था, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, जब एग्जामिनेशन किया गया तो स्टेट ऑफ राइगर मोर्टिस में था, हाइपोस्टेसिस भी उस पर थी। अच्छा, जो क्राउन हील लेंथ जो बेबी की थी वो 49 सेंटीमीटर थी। हेड जो एग्जामिनेशन पे हेड सर्कमफ्रेंस 31 सेंटीमीटर था। ब्लैक हेयर्स थे, जो नेल्स थे वो टर्मिनल पहले एक्सटेंड कर रहे थे टर्मिनल एंड ऑफ द फिंगर्स तक। अम्बिलिकल कॉर्ड जो स्टम्प थी वो 16 सेंटीमीटर लेंथ थी और एंड वो स्टिल अटैच, यानी कि अभी उसकी फॉल ऑफ नहीं हुई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है। एंड डिस्टल पार्ट वाज इरेगुलर कट। अच्छा, इरेगुलर कट था, मोस्टली होता है अम्बिलिकल कट को लाइगेट किया जाता है, वो लाइगेटेड भी नहीं था। और एब्डोमिनल अटैचमेंट जो उसकी एब्डोमेन में अटैचमेंट अम्बिलिकस की थी उसमें कोई वाइटल रिएक्शन था। अब ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हम डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरह इन्फेंटिसाइड को एग्जामिन किया जाता है और ये आपको डायग्नोज करने में किस तरह हेल्प करते हैं। जो कॉमनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 कॉमनली पूछे जाते हैं कि आया चाइल्ड स्टिल बॉर्न था या डेड बॉर्न था, ये हम आगे हम पढ़ेंगे स्टिल बॉर्न क्या होता है, डेड बॉर्न क्या होता है। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि क्या वायबिलिटी की एज पे वो था कि नहीं था, यानी कि उसका सिंगल सर्वाइवल उसका था कि नहीं था। फिर ये था कि चाइल्ड अलाइव बॉर्न था, और अगर अलाइव बॉर्न था तो आपने प्रूफ कैसे किया। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि अगर अलाइव बॉर्न था तो उसने कितना टाइम तक सिंगल सर्वाइवल उसने खुद अपने सर्वाइव किए, कितने डेज थे, कितने आवर्स थे। और फिर फाइनली होता है कि कॉज ऑफ द डेथ क्या होती है। तो यानी कि ये सब चीजें बेसिकली स्टेटस ऑफ द इन्फेंट को मार्क करती हैं। अब स्टेटस ऑफ द इन्फेंट को किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे, इसमें जो टर्म्स आती है वो है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि चाइल्ड विच इज बॉर्न आफ्टर 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जेस्टेशन को 28 वीक्स हो गया है, लेकिन जब उसकी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के टाइम एक भी इसने ब्रेथ नहीं ली है, यानी कि ही हैज नॉट एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड। He did not show any signs of life after being completely born, यानी कि कंप्लीट उसकी डिलीवरी हो गई है, उसके बाद भी जो है देयर इज नो मूवमेंट। तो इसका मतलब है कि दिस इज टर्म्ड एज स्टिल बर्थ, यानी कि आफ्टर 28 वीक्स को हम करते हैं स्टिल बर्थ। द चाइल्ड वॉज अलाइव इन यूट्रो, मीन्स इन यूट्रो तो था वो अलाइव था, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द बर्थ ही मे हैव एक्सपायर्ड। स्टिल बर्ड्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है ये किन में होता है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कॉमनली इलेजिमेट चाइल्ड चिल्ड्रन से होते हैं उनमें होती है, या इमेच्योर चिल्ड्रन। जो इन्होंने ये डेटा दिया वो मेल चिल्ड्रन में है, लेकिन हमारे यहाँ जो आप डेटा देखें पाकिस्तान में कॉमनली जो है वो फीमेल चिल्ड्रन होती है। या प्राइमरी पेरेंट्स में भी होता है, क्योंकि प्राइमरी में इसलिए होता है कि दे कैन नॉट डिफरेंशिएट कि आइदर द बेबी की अलाइव है कि नहीं, या उसके हेल्थ जो एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं तो उसमें कोई मिस हो जाता है या कोई मिसहैप हो जाता है, ये प्राइमरी में कॉमनली स्टिल बर्थ के चांसेस होते हैं। अबाउट 5% चांसेस के होते हैं स्टिल बर्थ के। इट इज बॉर्न इन स्टेराइल कंडीशन। अब स्टेराइल कंडीशन हम इसलिए कह रहे हैं कि अब 28 वीक्स में इन यूट्रो या एयर एक्सपायर नहीं हुई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हुआ, तो स्टेराइल में भी होता है, इसीलिए प्यूट्रिफैक्शन होता है। प्यूट्रिफैक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन स्टेट होती है। और क्यों होता है, जबकि एक्सटर्नल बैक्टीरिया बॉडी में आते हैं।
लेकिन ऐसे कंडीशन में बेबी क्योंकि स्टेराइल लाइटर में है, उसमें कोई फॉरेन एयर एंट्री नहीं हुई, फॉरेन ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहा होता, तो एक आपका एक स्टेराइल मीडियम होता है, तो इसमें प्यूट्रिफैक्शन तो डेवलप नहीं होता। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें डेवलप होता है मेसिरेशन डेवलप होता है, जो कि इन्फेंट्स में जो इंट्रायूट्राइन डेथ होती है, इट्स अ फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन इन इन्फेंट्स विच इज मेसिरेशन। अच्छा, कॉज क्या होते हैं स्टिल बर्थ के? एक तो ये हो सकता है कि प्रोलॉन्ग लेबर हो, मदर की एफर्ट्स नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि एडीमा और ब्लीडिंग इन द स्कैल्प होता है। जब एडीमा और ब्लीडिंग इन द स्कैल्प होता है तो उसमें कंडीशन डेवलप होती है, दैट इज कैपेट सक्सिडेनम, एज इसमें पिक्चर में शो है। कैपेट सक्सिडेनम क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से सराउंडिंग जो स्कल होता है, स्कल एंड द ब्रेन, इसमें फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है, ब्लड की कलेक्शन हो जाती है। अब ये कोई इसकी डिमार्केशन नहीं होती है, इसमें कोई फ्रैक्चर नहीं हो रहा होता स्कल का, बट एक सिंपल एक स्वेलिंग हो रही होती है सराउंडिंग में, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होता है जिसकी कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती। एंड सिवियर मोल्डिंग ऑफ हेड इंडिकेट्स स्टिल बर्थ, और डेथ फ्रॉम नेचुरल कॉजेज शॉर्टली आफ्टर बर्थ। वन ऑफ द कॉजेज जो होते हैं कैपेट सक्सिडेनियम के जो होते हैं वो स्टिल बर्थ इसकी कॉजेज होती हैं। अच्छा, meconium staining of the body mainly indicates that fetal distress has occurred before or during the delivery. सेकंड तो एक आपने उसकी prolonged labor होगी, दूसरी चीज जब आप बॉडी को एग्जामिन करते हैं तो अगर म्यूकोनियम स्टेनिंग बॉडी आ रही है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है कॉज ऑफ स्टिल बर्थ। उसमें अगर जब बॉडी डिलीवर हो जाती है फीटस की, इन्फेंट की, तो उसमें आप बॉडी को एग्जामिन करते हैं, या तो उसकी ओरल कैविटी में, या तो उसके जो नेल्स होते हैं, जैसे पिक्चर में हो रहा है वो थोड़ा ग्रीनिश या येलोइश टिंज में होता है, जो कि आपको ये आइडिया दे सकते हैं कि कॉज ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ दी म्यूकोनियम की वजह से जो होता है वो एस्फिक्सिएशन उसकी हुई है। दूसरा है लंग्स आर डार्क इन कलर, ये ऑटोप्सी फाइंडिंग्स आपको मिलेगा जब आप बॉडी को ओपन किया जाता है। कॉजेस क्या होते हैं स्टिल बर्थ के? प्रीमेच्योरिटी, एनॉक्सिया वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि म्यूकोनियम की वजह से भी हो सकता है, कोई इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है यानी कि एनीमिया की वजह से भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कोई एक्सेसिव ड्यूरिंग डिलीवरी जो है, तो 3 स्टेजेस ऑफ डिलीवरी उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं जिसकी वजह से हैमरेज, इंट्राक्रेनियल हैमरेजेस हो गया, या हेड की जो ट्रॉमा हो गया है, फ्रैक्चर्स हो गए, उसमें हो सकता है। प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटीज होती हैं, प्रेगनेंसीज इन्फेक्शन हो सकते हैं, यानी या कंजेनाइटल कोई डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टिल बर्थ जो है वो होती हैं। सेकेंड इज दी डेड बॉन्ड, स्टिल बर्थ आफ्टर 28 वीक्स की थी। डेड बॉन्ड जो होती है, द फीटस हैज डाइड इन यूट्रो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वीक्स, ही एंड शी हैज डाइड इन यूट्रो। अब किस तरह पता चलेगा कि साइंस आपको क्या मिलती हैं कि द फीटस इज अ डेड? तो ये कि जब डिलीवर किया जाता है, बेबी ऐसे डिलीवर होता है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और राइगर मोटर्स उसमें डेवलप हुआ होता है। बॉडी का शेप जो होता है वो बिल्कुल रिजिड सा होता है, डार्क ममीफाइड टाइप बॉडी होती है, तो उसको स्टेट ऑफ राइगर मोटर्स को उसको लेबल किया जाता है। फिर है मेसुरेशन, जैसे हमने स्टिल बर्थ में कहा था कि क्योंकि इसी का डेड बॉन्ड में भी होता है कि एक उसकी जो एनवायरनमेंट है उसका एसेप्टिक एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें मेसुरेशन डेवलप होती है। मेसुरेशन होता क्या है बेसिकली? मेसुरेशन इज दी जो सुपरफिशियल, जैसे हमने एडिपोसियर फॉर्मेशन आपने पढ़ी है इन कॉज ऑफ द डिलेड जो प्यूट्रिफैक्टिव चेंजेस होती हैं, इसी तरह मेसुरेशन जो होता है वो इन्फेंट्स में मिलता है। इसमें जब एयर कोई एंटर नहीं होता तो जो स्किन की जो स्लिपिंग होती है, जो सुपरफिशियल स्लिपिंग होती है, ये बिल्कुल प्रिजर्व स्टेट में आती है, बॉडी प्रिजर्व रहती है, सुपरफिशियल स्किन पील ऑफ स्टेट में होती है, सॉफ्ट एंड फ्लैबी होती है। उसके अलावा ऑयल कब मिलती है आपको? 12 आवर्स आफ्टर डेथ। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि दिस इज मेसुरेशन? आइडेंटिफाई के फीचर्स यही है कि एक तो वाइटिश कलर में होती है बॉडी, सुपरफिशियल स्किन जो होती है, डीप अगर देखा जाए तो बॉडी में पर्पलिश या रेडिश जो है तो उसकी बेस मिलती है, और ये आपको कब मिलेगी? 12 आवर्स, विच within the 12 hour the child has died in utero.
बाज़-औक़ात जो डेड बॉर्न होता है उसमें एक तो आइडेंटिफिकेशन बहुत डिलेड होती है। जब हमारे यहाँ जब एग्जामिनेशन होता है प्रेगनेंसी में, जब एग्जामिनेशन होता है कॉमनली ये पूछा जाता है कि जी मूवमेंट है कि नहीं। समटाइम्स तो वो मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर सकती है मदर, समटाइम नहीं करती। ऐसे केसेस में अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करती और टाइम बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है तो उसमें मेसेरेशन जो होता है बाज़-औक़ात जब वो डिलीवर होता है सभी बहुत एडवांस स्टेज में होता है। और ये जो अभी पिक्चर नजर आ रही है बाज़-औक़ात इस पिक्चर में नहीं होती और इससे ज्यादा डार्केस्ट जो मरूनिश कलर में होते हैं बॉडी वो डिलीवर होती है। दूसरी चीज जो आपको आइडेंटिफाई करती है डेड बॉन्ड में वो है रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन में आप ऑन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपको ये पता चलता है इट्स वेरी रेयर, अगर बहुत ही रेयर हो। अगर एडवांस स्टेज में होगी तो फिर तो आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अर्ली स्टेज में अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया तो फीटस इज डेड, तो उसमें जो ग्रेट वेसल्स होती हैं, हार्ट है, एओर्टा है, उसमें गैस के बबल्स नजर आते हैं। तो ये रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में मिलता है, इसको रॉबर्ट साइन कहते हैं। अच्छा उसके अलावा जो हमने बात की थी स्किन की जो पील ऑफ, जैसे पिक्चर में भी नजर आ रहा है स्किन पील ऑफ, ये लार्ज ब्लैब्स होते हैं जो कि बर्स्ट ऑफ हो जाते हैं। लार्ज ब्लैब्स हमें प्यूट्रीफैक्शन में मिलता है। तो कॉमनली मिस्टेक जो होती है वो यही होता है, मेसुरेशन को प्यूट्रीफैक्शन के उसमें जो होता है उसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मेसुरेशन होगा तो वही तो आपको स्टेराइल के बारे में बता रहा होता है कि मीडियम वॉज स्टेराइल, और प्यूट्रीफैक्शन जो होता है वो ये बताता है कि द मीडियम was not sterile, बैक्टीरिया एंट्री थी, या भी हो सकता है कि द चाइल्ड was not dead born, he was born alive, और उसके बाद प्यूट्रीफैक्शन बॉडी में डेवलप हुआ। तो ये क्वेश्चन मार्क्स होता है। Epidermis detaches easily, leaves a moist and greasy area, just like adipose tear। अगर जो पिक्चर देखें adipose tear में होता है कि moist टाइप स्किन होती है, greasy स्किन होता है, ऐसा लगता है कि फैटी चेंजेस आ रही हैं, हालांकि इंटरनल फैट्स होते नहीं हैं। The tissues are reddish due to hemolysis and edema जो डेवलप हुआ होता है बॉडी में। एब्डोमेन डिस्टेंटेड होता है, सॉफ्ट एंड फ्लैबी जो होती है वो पूरी बॉडी होती है। सीरस कैविटीज में जो होते हैं फ्लूइड अप टू 48 आवर्स तक जो है वो डार्किश फ्लूइड होता है। बोन्स जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं और इजीली डिटैच हो जाती हैं, क्योंकि जो लिगामेंट्स होते हैं वो इजीली रिमूव्ड हो जाते हैं और या फिर वो आइडेंटिफाइबल नहीं होता अगर प्रोलॉन्ग टाइम होता है। जॉइंट्स जो है वो एबनॉर्मली मूव कर रहे होते हैं तो उनकी अलाइनमेंट लॉस हो जाती है। अब अलाइनमेंट किस तरह लॉस होती है, एक तो ये स्कल की जो सुचर्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। क्यों सेपरेट होते हैं, इसलिए कि जो सेरिबेलम जो ब्रेन होता है वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने के बाद उसके बाद इतनी स्पेस उसको सपोर्ट नहीं मिलती तो फ्यूचर सेपरेट होते हैं। फ्यूचर सेपरेट होते हैं तो वन बाय वन एक दो फ्यूचर एक के ऊपर ओवरराइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पैल्डिंग साइन, विच इज वन ऑफ द श्योरेस्ट साइन ऑफ डेड बॉर्न इन्फेंट। दूसरा ये होता है जो वर्टिब्रल कॉलम की अलाइनमेंट होती है वो लॉस हो जाती है। बॉडी जो होती है बिल्कुल इस तरह की मोर ऑफ स्ट्रेट नहीं होती बल्कि मोर ऑफ दी फ्लेक्स फॉर्म में आ जाती है। इसी तरह थोरेक्सिक कैविटी में जो रिब्स होते हैं वो भी उनकी अलाइनमेंट लॉस हो जाती है, वो एक शेप में नहीं होती, उनकी भी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब पूरा टाइम जो लेता है ये 2 to 3 वीक्स का टाइम लेता है, ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर तो लाइकर, अगर कंडीशन ऐसी हो कि जिसमें लाइकर स्कैंटी हो, क्योंकि मेसुरेशन के लिए नेसेसरी है कि आपके पास प्लेंटी ऑफ लाइकर हो, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो कि जिसमें लाइकर बहुत कम था तो उसमें ममिफिकेशन डेवलप होती है। ममिफिकेशन जो होता है उसमें डिफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो या लाइकर हो तो उसमें बॉडी जो होती है श्रिंक या श्रिवल्ड अप होती है, तो उसको ममिफिकेशन लेबल करते हैं। फिर लाइव बर्थ, ये कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह आपको पता था कि बेबी एट द टाइम ही और शी वाज गिवन बर्थ वो अलाइव था कि नहीं, कि साइंस ऑफ उसके क्या थे कि जिसमें हम इसको लेबल करें कि ये अलाइव था या उसने ब्रीथ किया था कि नहीं। तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो सिविल केसेस में इसकी इंपॉर्टेंस होती है और क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस में ये होता है कि कंप्लीटली आफ्टर बर्थ चाइल्ड के कोई प्रूव हो कि जो जिसमें ही वाज अलाइव। अब उसके क्या प्रूव होते हैं कि आफ्टर बर्थ ही और शी क्राइड, आफ्टर बर्थ देयर वाज अ मूवमेंट ऑफ द लिम्स, बॉडी एंड द लिम्स, एंड देयर वाज अ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये तीन चीजें होती हैं कि जिसमें आप उसको सिविल केसेस में ये पूछा जाता है कि ये तीनों चीजें मौजूद थी या नहीं। अब ये कौन प्रूफ देता है इस चीज का, प्रूफ देगा डॉक्टर जो वहां मौजूद था, प्रूफ देगा वहां पे जो नर्सिंग स्टाफ वो थे,
प्रूव होगा जो उस टाइम जो उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो उसका एक प्रूव होता है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, फाइलिंग होती है, वो सब आप बताता है कि दिस इज द प्रूव दैट द चाइल्ड वाज अलाइव। ये तो नॉर्मल हिस्ट्री में आ रहा था। फिर हम एग्जामिनेशन पे आते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम पे पता चल सकता है कि लाइव बॉर्न थी या डेड बॉर्न डिलीवरी थी। अच्छा, उसके बाद ये है कि दो चीजें एक टर्म यूज की जाती हैं कि अगर बेबी की क्राई होती है, या तो वो एक्स्ट्रा डिलीवरी के बाद अगर वो क्राई हो, एक तो वो है, दूसरी उसकी क्राई अगर इन यूट्रस है तो वो एक नोट करनी होती है, वजाइना में होती है तो वो उसको यूज करते हैं। और ये कौन नोट कर रहा होता है? ये नोट कर रहा होता है जो वहाँ पे स्टाफ होगा और या फिर जो डॉक्टर होगा वो नोट करता है। एंड फाइनली जो मदर होगी, अगर if she is was in the state, वो भी वाउट कर सकती है the baby was alive। तो उसमें दो टर्म्स होती हैं, वेजाइटस वजाइनस और वेजाइटस यूट्रिनस। दो टर्म्स होती हैं कि बेबी की क्राई थी कि नहीं। फिर है क्रिमिनल एग्जामिनेशन। क्रिमिनल केसेस में हमेशा जो लाइव बर्थ की साइन है वो पोस्टमार्टम का पता चलता है। पोस्टमार्टम के अलावा जो है उसको आप प्रूव नहीं दे सकते। और पोस्टमार्टम सेम है जो ऑटोप्सी का होता है, एक्स्ट्रा इंटरनल एग्जामिनेशन का आपको पता चलता है। अच्छा, और अगर क्रिमिनल ऐसा केस है तो आपने क्या साइंस देखनी होती है लाइव बर्थ की? एक तो ये कि प्रेजेंस ऑफ क्लोथिंग एंड एब्सेंस ऑफ वर्निक्स कैसी होता है। क्लोथिंग का मतलब होता है कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसको उसको कवर अप किया गया है, या जिस जिस कवर या क्लोथिंग में उसको रिसीव किया गया है, एक तो वो आपका एविडेंस होता है। दूसरा वर्निक्स केसियस होता है। वर्निक्स केसियस होता है कि जो आप जो बॉडी इन्फेंट की बॉडी पे जो म्यूकस होता है या इंट्रायूट्राइन जो एपिथेलियम श्रेड्स होते हैं या सीबम होता है, वो सब जो है वो कवर है कि नहीं, एक वो एक एविडेंस होता है। फिर है सर्कमफ्रेंस ऑफ द चेस्ट इज ड्रम शेप। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द चेस्ट इसलिए हेल्प करता है कि अगर तो बेबी ने रिस्पायर किया है तो चेस्ट का डायमीटर जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब हम इंस्पायर करते हैं तो चेस्ट जो है वो इंक्रीज होता है और जब एक्सपायर करता है डिक्रीज करता है। तो ये ऑब्वियस साइन होता है कि जो उसकी एक्सटर्नली अगर उसने एक क्राई भी लिया और एक्सटर्नली अगर उसने एक ब्रेथ भी ली है तो लंग्स जो होते हैं वॉल्यूमिनस होते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट का डायमीटर चेंज हो जाता है। एक ये साइन होता है। अगर उसने रिस्पायर किया ही नहीं है तो वो फ्लैट चेस्ट रहेगा, उसको कोई डायमीटर इंक्रीज नहीं रहता। ये सब आप डिफरेंशिएट करते हैं। फिर अम्लाइकल कॉर्ड से आप देखते हैं, अम्लाइकल कॉर्ड अगर देखो क्लीन कट है विद लाइगेचर है तो ये पता चलता है कि चाइल्ड वाज बोर्न अलाइव और उसको प्रॉपर उसकी टेक केयर हुई है। लेकिन अगर अम्लाइकल कॉर्ड जो है वो टोर्न है या ट्विस्टेड है या फिर उसका इरेगुलर कट हुई है और उसको लाइगेचर नहीं दिया गया, तो इसमें फिर क्वेश्चन आता है कि या तो ये कोई इलीगल डिलीवरी थी, या तो ये किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन के हाथ नहीं हुई है, या तो इसमें कोई हार्मफुल इंटेंट था। तो ये तीन चीजें आती है जो अम्लाइकल कॉर्ड की एग्जामिनेशन में आपको पता चल जा सकता है। और फिर ये भी आपको बताता है कि लाइव बॉन्ड था कि नहीं था, क्योंकि अगर लाइव बॉन्ड था उसमें वाइटल रिएक्शन होगा, अम्लाइकल कॉर्ड की जो चेंजेस आती हैं जिसमें वो इन्फ्लेमेटरी शाइन होगा, वो स्कार फॉर्मेशन होगा, स्कैब फॉर्मेशन होगा या ड्राई होगा, या तो वो चीजें आपको एग्जामिनेशन में पता चलती है। फिर है स्किन चेंजेस। अगर जैसे किसी ने बच्चे ने कोई एक सिंगल ब्रेथ भी ली होती है तो उसका कलर चेंज होता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, वो क्राई करता है, अचानक से फेस रेड होता है। जब बॉर्न होता है तो व्हाइट होता है, बिल्कुल कंप्लीटली पेल होता है। लेकिन बॉर्न होने का फौरन ही जब उसको टैप किया जाता है उसकी बॉडी में ताकि वो क्राई करे, तो क्राई करने से क्या होता है, बॉडी का कौन सा फेस का कलर सबसे पहले चेंज होता है, सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। तो ये डिफरेंट, अगर वो उसकी पेल है तो ये बता सकते हैं कि ही वाज अनरिस्पॉन्सिव या अनरिस्पायर्ड था या लाइट बॉन्ड नहीं था। लेकिन अगर उसके फेस का कलर रेड है या पिंकिश है तो ये बता सकते हैं कि कितना टाइम हो गया है या लाइट बॉन्ड था कि नहीं था। ये भी एक स्किन चेंजेस आपको हेल्प करता है। फिर लाइव बॉर्न इन्फेंट अगर एयर स्वॉलो किया, जब क्राई करेगा तो एयर जो है वो स्टमक में जाएगी, तो स्टमक भी एक्सपेंड होगा, इंटेस्टीन भी एक्सपेंड होगा, तो ये भी एक लाइव बॉन्ड की फाइंडिंग होती है। फिर लार्ज इंटेस्टीन जो है वो 24 आवर्स के बाद मिकोनियम से कंप्लीटली फ्री होती है आफ्टर बर्थ। अगर तो मिकोनियम है ही नहीं तो इसका मतलब है कि 24 आवर्स गुजर चुके, मोर देन 24 आवर्स है आफ्टर बर्थ। लेकिन अगर मिकोनियम टिल स्मॉल इंटेस्टीन लार्ज इंटेस्टीन तक है तो इसका मतलब है विद इन 24 आवर्स हुए हैं बर्थ को। तो ये भी एक साइन होती है लाइव बर्थ। फिर रिस्पायर्ड और अनरिस्पायर्ड लंग का एक लंग का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है जो एग्जामिनेशन से पता चलता है। रिस्पायर्ड लंग को होता है जो कि लाइव बॉर्न है, अनरिस्पायर्ड जो है बेसिकली स्टिल बर्थ को कहते हैं, कि जिसने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही हैज रिस्पायर्ड बट उसके बाद उसकी कोई रीजन की वजह से उसकी डेथ हो गई है।
सॉरी उसने रिस्पायर नहीं किया है स्टिल बर्थ में। तो अगर अनरिस्पायर्ड या स्टिल बर्थ है तो उसमें कलर जो होगा वो ब्लूइश रेड होता है। रिस्पायर्ड लंग का मोटेड होगा क्योंकि उसने ब्रीथ किया है। रिस्पायर्ड लंग का जो वॉल्यूम होगा वो लार्ज होगा, पूरी चेस्ट कैविटी और हार्ट को कवर करेगा। अनरिस्पायर्ड में ऐसा होता नहीं है। प्लूरा जो होगा वो स्ट्रेस्ड होता है, लेकिन जो अनरिस्पायर्ड का होगा वो रिंकल्ड होता है, लूज होता है, क्योंकि उसमें एयर की एंट्री हुई नहीं है। इसी तरह एल्वुलाई भी जो होते हैं वो श्रिंक्ड होते हैं, रिस्पायर्ड में एल्वुलाई जो होते हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं। मार्जिन जो होंगे वो राउंडेड होते हैं, सरफेस अनइवन होती है। और कंसिस्टेंसी की अगर बात की जाए तो रिस्पायर्ड रंग जो होंगे वो इलास्टिक होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, यानी कि जब आप उसको प्रेस करेंगे तो पता चलेगा कि एयर जो है वो रिमूव हुई है, वाटर जो है वो रिमूव है। अनरिस्पायर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, वो डेंस और फॉर्म होते हैं क्योंकि अभी उसमें एयर एंट्री हुई नहीं। जस्ट लाइक बलून में, जैसे बलून में एयर जाता है वो एक्सपेंड होगा, एयर नहीं होगा तो बिल्कुल डेंस फॉर्म में रहता है। अच्छा, ये तो ग्रॉस एग्जामिनेशन पे था, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में करेंगे तो एक तो एल्वुलाई जब आप एग्जामिन करते हैं उसमें आपको पता चलता है कट सेक्शंस में कि उसमें एल्वुलाई एक्सपेंड है कि श्रिंक है। दूसरा ये होता है कि फ्रॉथ से भी पता चलता है, जब कट सेक्शन लिया जाता है लंग्स का तो फ्रॉथ भी एक हेल्पफुल इंडिकेटर होता है। रिस्पायर्ड लंग में जो होगा फ्रॉथ होगा क्योंकि एयर की एंट्री हुई है और उसमें जो ब्लड होगा वो उसकी वजह से उसके अंदर जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। देखिए अनरिस्पायर्ड में जो है वो सिर्फ ब्लड के अलावा कुछ नहीं होता, एयर की एंट्री होती नहीं है, तो इसलिए फ्रॉथ जो है वो वहां पे इतना मौजूद नहीं होता। फिर हम करते हैं हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट। हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट जो होता है एक तरीके से समझ लें डायग्नोस्टिक हो सकता है। हाइड्रोस्टेटिक में ये करते हैं कि लंग्स जो कि अनरिस्पायर्ड लंग्स होते हैं और जो रिस्पायर्ड लंग्स है उनको एक वाटर बाथ में एंटर किया जाता है। अनरिस्पायर्ड लंग्स जो है वो क्या करेंगे, वो सिंक डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनके एल्वेला एक्सपेंड ही नहीं हुए होते हैं, उनमें एंट्री नहीं होती, तो वो एक तरीके से वो बिल्कुल एक डेंस फॉर्म में होते हैं, तो जो है वो बॉटम में जाके सिंक हो जाते हैं। और जो रिस्पायर्ड लंग होते हैं क्योंकि उसमें एयर होते हैं वो लाइटर होते हैं, इसलिए वो फ्लोट करते हैं। तो एक तरीके से ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है हाइड्रोस्टेटिक। दूसरा, आप वेट के थ्रू भी एग्जामिन कर सकते हैं कि अनरिस्पायर्ड का जो होगा वो वेट तकरीबन होता है 30 to 40 ग्राम्स, और जो रिस्पायर्ड लंग होता है उसका वेट इंक्रीज होगा 60 to 70 ग्राम्स होता है उनका वेट होता है। तो ये कुछ लाइव और स्टिल बॉडी के डिफरेंसेस हैं, ये टेबल बुक में भी दिए हैं, यू कैन इजीली स्टडी। अच्छा, जब हम इन्फेंट डेथ की बात करते हैं तो उसमें क्या रीजन क्या होते हैं? कुछ तो नेचुरल कॉजेज होते हैं दैट वी नो कि जैसे अभी हमने सारी स्टडी की कि प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, टॉक्सीमियाज हो सकती हैं, मदर रिलेटेड कोई प्लेसेंटा अब्रप्शन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकती है, वो नेचुरली हो सकता है, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं। लेकिन अगर अननेचुरल कॉजेज होते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये एक्सीडेंटल है और क्रिमिनल है। अब एक्सीडेंटल को हम अननेचुरल में क्यों लेके आ रहे हैं? एक तो ये कि प्रोलॉन्ग लेबर है। प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से क्या होता है कि मदर में भी गेट एग्जॉस्टेड, तो मदर के लिए भी एक डेथ हो सकती है, मदर की वजह से फीटल भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। फिर प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड और प्रेशर ऑफ द कॉर्ड ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से हो सकता है कि वो कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए। प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से हो सकता है ट्विस्टिंग ऑफ द कॉर्ड अराउंड द नेक हो सकती है, या फिर जो कॉर्ड है उनकी मल्टीपल ट्विस्ट की वजह से वो नॉट होके वो इस्कीमिया प्रोड्यूस कर ले। ड्यूरिंग डिलीवरी जो है मदर्स में कोई इंजरी डेवलप हो जाए, हेमरेज डेवलप हो जाए, या फिर डेथ ऑफ द मदर हो जाए, मदर इज वीक है, मैलनरिश्ड है, जिसकी वजह से कोई अंडरलाइन कॉज की वजह से या रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से डेथ हो जाए, या फिर आफ्टर बर्थ सफोकेशन है। अब आफ्टर बर्थ सफोकेशन इन्फेंट्स में हो सकती है कि उसकी प्रॉपर आई मीन एयरवे उसको क्लीन नहीं किया गया या कोई एबनॉर्मलिटी या पैथोलॉजी डेवलप हो गई जिसकी सफोकेट करती है। फिर आता है क्रिमिनल कॉज। क्रिमिनल कॉज में दो चीजें होती है, एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन। एक्ट ऑफ कमीशन का मतलब होता है वो एक्ट जो कि पॉजिटिवली विद फुल इंटेंट किया जाए इन्फेंट की डेथ हो। अब ये किसके ऊपर आता है? इसमें मदर भी इन्वॉल्व हो सकती है और इसमें जो है वो जो हैंडल कर रहे होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, दोनों एक्ट ऑफ कमीशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें आपको क्या चीजें मिल सकती हैं जो कि इसको एक्ट ऑफ कमीशन को जो है बेसिकली दिस शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर होमिसाइड। इसका मतलब ये होता है कि होमिसाइड में तो आपकी फुल इंटेंट होगी कि एक थर्ड पर्सन आके
इसमें इन्वॉल्व होगा। इसमें जो होगी, इसमें मदर का हैंड इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है विद द हेल्प ऑफ एनीवन, लेकिन मदर का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। इसमें वो क्या हो सकता है, सफोकेट, स्ट्रैंगुलेट, जैसे हमने केस स्टडी की थी जो फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, कि स्ट्रैंगुलेशन बच्चे की नेक के अराउंड कोई रोप या क्लोथिंग कर दिया या बर्न कर दिया, ब्लंट इंजरी टू द हेड, बॉडी को बच्चे को जो है वो ब्लंटली कहीं थ्रो किया गया, फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री हो, प्रॉपर टेक केयरिंग हो, यो वुंड्स या पॉइजनिंग। बच्चों में कॉमनली जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट एग्रीकल्चर पॉइजन कॉमनली यूज होते हैं। ओपीएम दिया जाता है ताकि इंड्यूस्ड उनको डिप्रेशन किया जाए, या फिर एसिड्स भी पास का यूज किए जाते हैं। तो ये एक्ट्स ऑफ कमीशन होते हैं। फिर एक्ट्स ऑफ ओमिशन या नेग्लेक्ट, इसमें ये होता है डूइंग एक्ट ऑफ नेग्लेक्ट की वजह से जो है वो इन्फेंट की डेथ होगी, जिसमें अ वुमन इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस इफ शी डज नॉट टेक केयर ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस टू सेव हर चाइल्ड आफ्टर बर्थ। तो उसकी मदर की जो होगी वो कोई निगलेक्ट होंगी, वट एवर अंदर कोई रीजन हो सकती है जिसकी वजह से इन्फेंट की डेथ हो, या तो फेलियर टू प्रोवाइड प्रॉपर असिस्टेंस ड्यूरिंग लेबर, failure to clear the air passages which may be obstructed, failure to protect the child from the environment, heat or cold, and failure to supply food, proper food to the child. तो ये सब चीजें जो है ये एक्ट ऑफ ओमिशन में आती हैं। ओके अच्छा, अब हमने जो सारी बात की थी उसमें हमने कहा था वायबिलिटी, वी यूज द टर्म वायबिलिटी। वायबिलिटी वी नो कि 7 मंथ में जब हम बुक में पढ़ते हैं कि 7 मंथ होती है आफ्टर 180 डेज हो, या 7 months up to 210 days intrauterine हो, तो that is a viable. Now how will you prove that this infant was of a viable age? वायबिलिटी के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसपे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये कि आपके पास कोई हिस्ट्री हो, आपके पास कोई एंटीनेटल रिकॉर्ड हो जिसपे आप ये प्रूव करें कि ये वायबिलिटी की तरफ था, या फिर अगर कोई ऐसी चीज नहीं होती है तो उसको आपने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पे प्रूव करना होता है। अच्छा, एग्जामिनेशन में आप उसको कैसे प्रूव करेंगे, एज आप कैसे मालूम करेंगे? एक तो चीज ये है कि आपने उसकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करना, नेकेड एग्जामिनेशन करना, उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो आपने नोट करने होते हैं। फिर आता है आपके पास एग्जामिनेशन जिसमें हम लेंथ ऑफ द फीटस लेते हैं। लेंथ ऑफ द फीटस में फ्रॉम क्राउन टू द हील लेंथ लेते हैं। फर्स्ट 5 मंथ्स के कुछ रूल अलग होता है और लास्ट 5 मंथ्स में कुछ अलग होता है। फर्स्ट 5 मंथ्स में जो आपने लेंथ लिया सेंटीमीटर्स में, उसको जो है वो स्क्वायर रूट किया जाता है, तो आपको फीटस की एज इन मंथ्स बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फीटस की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो उसका स्क्वायर रूट किया जाएगा तो दैट इज द 2, यानी कि द फीटस इज इन ऑफ 2 मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्राइन की एज है, सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 2 मंथ्स का। इसी तरह अगर ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ्स में अगर हम देखा जाए तो उसमें जो लेंथ आती है सेंटीमीटर्स में, उसको आप डिवाइडेड बाय 5 करना है। अब जैसे इस पिक्चर में लिखा हुआ है कि 35, तो आपने डिवाइड करना है इसको 5 से, तो ये क्या बनेगा, इट मींस वायबल है, होगा इसमें। ये इस तरह आपने उसकी वायबिलिटी को मेजर करना होता है। एक इसको हम कहते हैं रूल ऑफ हैश, जो हमने क्राउन हील मेजरमेंट की, इसको हम कहते हैं रूल ऑफ हैश, जिसमें आप थ्रू द लेंथ जो सेंटीमीटर्स में एज निकालते हैं। फिर आता है जो हमने पिक्चर्स लगाई हैं, दिस इज नोन एज दी ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन की जो मेच्योरिटी होती है उससे आप एज मालूम कर सकते हैं। जैसे कि 7th मंथ में यहाँ लिखा हुआ है टैलिस को एग्जामिन करते हैं। इसमें टैलिस में जो ऑसिफिकेशन सेंटर की मेच्योरिटी देखते हैं, ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बोन्स है उनकी क्रॉस सेक्शनिंग होती है, क्रॉस सेक्शन लिया जाता है, और उसके बाद क्रॉस सेक्शन में जो आपके उसको ऑसिफिकेशन सेंटर्स नजर आते हैं उस पर आप उसको लेबल करते हो कि यस दिस इज वायबल और नॉट। 7th मंथ के लिए आप टैलिस लेते हैं फीट में, 5th मंथ के लिए जो है वो कैल्केनियम लेते हैं, 9th मंथ के लिए क्यूबॉइड लेते हैं। तो ये एक होते हैं। दूसरा, अगर 9th में फुल टर्म देखना है, अगर कबादा का टर्म होता है कि फुल टर्म बेबी थी, तो आप कैसे उसको लेते हैं, फुल टर्म नहीं लिखेंगे, आपने उसको मंथ्स में उसकी एज बतानी होती है।
तो उसको प्रूव करने के लिए ये होगा कि फिर अगर लोअर एंड ऑफ द फीमर या अपर एंड ऑफ द टिबिया है तो उसमें इस तरह लेते हैं कि किस तरह उसकी एग्जामिन किया जाता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द लेग, दिस इज द फीमर एंड दिस इज द टिबिया। तो जो एट द पॉइंट ऑफ नी जॉइंट जो है उसको बेंड करके और फिर इसके कट सेक्शन दिए जाते हैं यहाँ पे फॉर्म द पटेला। तो यानी कि कट सेक्शन 1 2 3 कट सेक्शन स्मॉल लेते हैं जहां आपको ऑसिफिकेशन सेंटर्स फॉर्म द लोअर एंड ऑफ द फीमर और अपर एंड ऑफ द टिबिया नजर आता है, तो वहां आपको लेबल कर देते हैं कि यस द ऑसिफिकेशन सेंटर्स नजर आ रहे हैं, प्रोमिनेंट है, तो ये फुल टर्म है तो टिबिया पे आ जाएगा, 9 मंथ है तो फीमर में आ जाएगा। एक ये चीज होती है। अच्छा, फिर प्रेसिपिटेट लेबर ये होता क्या है? अच्छा, ये जो एज ऑफ द फीटस है, ये मैं इसमें कुछ पैरामीटर्स ये भी हैं कि फर्स्ट मंथ में आपके अंदर क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, सेकंड में क्या मिलती है, थर्ड में क्या मिलती है, फोर्थ में क्या मिलती है, और अप्रोक्सीमेट लेंथ और वेट में क्या होता है, ये बुक में दिया हुआ है। लेकिन मैं इस लेक्चर के साथ एक फॉर योर इजी के अगर आप फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकें वो मैं अटैच कर दूंगी। इसमें सिर्फ फीचर दी जाती है 7th मंथ में बेबी के पेरेंट्स कैसी आती है इंट्रायूट्राइन, या 8th मंथ में कैसी आती है, या आईलेट की फॉर्मेशन किस में आ रही होती है, या नेल्स में फॉर्मेशन किस तरह आ रही होती है, फुल टर्म बेबी की प्रेजेंटेशन कैसी होती है। तो इस तरह से क्रूड मेथड होता है जिससे आप उनकी एज भी आप मालूम कर सकते हैं, वरना डायग्नोस्टिक जो होता है वो ऑसिफिकेशन और रूल ऑफ हैज के थ्रू आप करते हैं। प्रेसिपिटेट लेबर जो होता है बेसिकली जो हमने एक्सीडेंटल कॉजेज ऑफ इन्फेंट डेथ की है, इसकी वन ऑफ द कॉज होती है प्रेसिपिटेट लेबर, जिसमें के जो डिलीवरी के जो 3 स्टेजेस होते हैं वो बड़े शॉर्ट हो जाते हैं, जिसमें शॉर्ट टाइम के अंदर ही मदर जो है वो बेबी को डिलीवर कर देती है विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डिलीवरी होगी है, सेकेंड होगी है, थर्ड भी है। साइमल्टेनियसली तीनों स्टेजेस कंबाइन हो जाते हैं और एक साथ जो है वो बेबी डिलीवर होता है। इसमें क्या होता है, फीचर्स नॉर्मल होता है, या तो फीचर्स फुल टर्म होगा, नॉर्मल होगा, या तो प्रीमेच्योर होता है। अब उसके रीजन मदर रिलेटेड भी हो सकते हैं, कि हो सकता है रूमी जो है वो पेल्विस है, या रीजन हो सकता है स्मॉल बेबी है, या हो सकता है कोई एनी अदर कोई अंडरलाइन कॉज है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंटली जो है ये लेबर इंड्यूस हो गया। अच्छा, अब वुमेन में भी डिलीवर्ड अनकॉन्शियसली। अब एक तो ये हो सकता है कॉन्शियस डिलीवरी भी हो सकती है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है कि ड्यूरिंग पीरियड या उसको फिट्स हो, या कोमा में हो, या हिस्टीरिया में हो, या हिप्नोसिस में हो, या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नार्कोटिक्स और ड्रग्स हो, कि जिसमें उसको शी वाज अनेबल टू आइडेंटिफाई द स्टेजेस के हो क्या रहा है, या एनेस्थीसिया उसको दिया हुआ, या इवन डीप ड्रंकनेस में हो, तो उसमें ये प्रेसिपिटेट लेबर एक्सीडेंटल कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ हो सकती है। प्रेसिपिटेट लेबर में इन्फेंट डेथ होती है बेसिकली। अ वुमन में नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश द सेंस ऑफ फुलनेस, जो डिसेंट ऑफ द चाइल्ड की फुलनेस होती है, और वो या फिर बल्कि इवैल्यूएशन जो होती है उसको शी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बाज़ ये होता है कि बॉडी सिर्फ एक बच्चे की मिलती है, तो यू कैन नॉट लेबल इट ये एक केस ऑफ होमिसाइड। यू नीड तो हो सकता है कि क्योंकि एक्सीडेंटल कॉज है तो उसको रूल आउट करना होता है। फाइंडिंग्स मिलती क्या है? फाइंडिंग्स ये मिल सकती हैं कि लंग्स की जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाए तो उसमें फॉरेन पार्टिकल्स हो सकता है, या ड्रोइनिंग ऑफ द फ्लूइड हो सकता है, क्योंकि बाज़ात मदर को ऐसी पोजीशन में हो, कहीं लेबोरेटरी वगैरह में हो, तो उनमें भी फॉरेन जो है वो ये स्टेज प्रेसिपिटेट लेबर हो जाता है, तो उसमें फ्लूइड जो होता है बच्चा डिलीवर होने के बाद एस्पिरेट कर सकता है। या वो स्टैंडिंग पोजीशन में मदर हो तो एक्सीडेंटल फॉल हो सकता है, बेबी का फौरन वो ग्राउंड पे आए, तो जिसकी वजह से हेड ट्रॉमा हो सकता है, हेमरेज डेवलप हो सकता है, कॉमनली सबड्यूल हेमर हो सकता है, या तो बायलेटरल हो सकता है, या सर्वाइकल इंजरीज हो सकती हैं। दूसरा ये है कि कॉर्ड जो है वो टॉर्न हो सकता है, क्योंकि वो जब वो डिसेंड करता है वो इवैक्यूएट होता है, तो उसमें या तो कॉर्ड अराउंड द नेक हो सकता है, राउंड अप हो सकता है, या फिर वो क्योंकि सडन बेबी की फॉल होती है उसमें टर्न करके टॉर्न हो सकता है। अब वो मिडिल से तो टॉर्न नहीं होता, वो जहाँ से उसकी फीटल एंड जहाँ उसका होता है वहां से उसकी कॉमनली टॉर्न होता है। कैपेट सक्सेडिनियम डेवलप हो सकता है, या मोल्डिंग ऑफ द हेड, ये दोनों एब्सेंट होंगे, क्योंकि ये दोनों प्रोलॉन्ग लेबर में होते हैं जिसके अंदर टाइम लगता है। ये इसमें नहीं होता, इसमें इजी प्रेसिपिटेट लेबर में बेबी आउट होता है। फॉरेन मटेरियल्स मिल सकते हैं बॉडी पे, क्योंकि जहां मौजूद है वहां डिलीवर हुआ है, और ट्रेस एविडेंस बॉडी पे मिल सकता है, बेबी में मिल सकता है, फ्रैक्चर्स मिल सकते हैं।
अब डेथ क्यों होता है? डेथ होती है सफोकेशन के, मदर को पता ही नहीं चला कि बेबी डिलीवर हो गया, उसकी पोजीशन जहाँ पे उसने बेबी को रिससिटेट नहीं किया या बेबी की क्लियरेंस एयरवे क्लियरेंस नहीं हुई तो सफोकेट कर गया। हेड इंजरी कॉमनली होता है, अगर स्टैंडिंग पोजीशन में डिलीवर हुआ है तो हेड इंजरी होगी, सर्वाइकल इंजरीज होगी।